फ्रेंड्स, नमस्कार। मेडिटेशन इन स्पिरिचुअल लाइफ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। फिफ्थ चैप्टर, वर्ल्डली ड्यूटीज एंड स्पिरिचुअल लाइफ, सांसारिक कर्तव्य और आध्यात्मिक जीवन में आज का टॉपिक है ड्यूटी एंड अटैचमेंट। We may do our work. Number one, out of attachment to people and objects. Number second, out of a sense of duty. और थर्ड नंबर है out of devotion to the Supreme Spirit dwelling in all beings. Very often the first two got mixed up. Most people are unable to separate the true sense of duty from attachment. Duty then becomes a justification for our attachments. This is why one thinker has put its duty is the penalty we have to pay for our attachment. At first sight, this may seem a very curious and unsatisfactory definition, but it must be understood from a certain higher standpoint. The Buddhas, Christs, Ramakrishna, etc., have no duty at all. In their case, there is only loving service and no duty. There is no constraint in their activities, neither is there any wish for gain nor any for the fruits of their work. The perfect man has no duty and no attachment. There is nothing he has to perform as duty. His is only loving service done in perfect freedom without any sense of constraint or the thought of I and mine. कर्तव्य और आसक्ति। हम अपना काम लोगों और वस्तुओं के प्रति आसक्ति के कारण, नंबर दो कर्तव्य की भावना के कारण और नंबर तीन सभी प्राणियों में निवास करने वाले परम आत्मा के प्रति समर्पण के कारण कर सकते हैं। बहुत बार पहले दो आपस में जो टॉपिक हैं वो आपस में मिल जाते हैं, जिसमें अधिकांश लोग कर्तव्य की सच्ची भावना को आसक्ति के साथ जोड़ देते हैं, तो उसको अलग ही नहीं कर पाते। तब जो कर्तव्य है वह आसक्ति का औचित्य बन जाता है। इसलिए एक विचारक ने यहाँ तक कह डाला है कि कर्तव्य वह दंड है जो हमें अपने आसक्ति के लिए चुकाना पड़ता है। पहली नज़र में ये बहुत ही विचित्र और असंतोषजनक परिभाषा लग सकती है, लेकिन हमें इसे एक निश्चित उच्चतर दृष्टिकोण से समझना चाहिए। बुद्ध, ईसा, रामकृष्ण आदि का कोई कर्तव्य नहीं है। उनके मामले में केवल प्रेम पूर्ण सेवा है, कोई कर्तव्य नहीं। उनके कार्यों में कोई बंधन नहीं है, न तो लाभ की कोई इच्छा है और न ही कार्य के फल की कोई इच्छा। पूर्ण मनुष्य का न कोई कर्तव्य होता है, न कोई आसक्ति। उसे कर्तव्य के रूप में कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसकी केवल प्रेम पूर्ण सेवा है, जो बिना किसी बंधन या मैं और मेरा के विचार के पूर्ण स्वतंत्रता पूर्वक की जाती है। So duty does not consist in attachment or clinging to this little world of our ego, to our body, consciousness, to our mind, etc. And I am not prepared to call any work done through attachment or for the satisfaction for some desires, whatever is in its nature may be, duty or to give it the place of duty. Such work is attachment and clinging to our little personalities, but never the fruit of a higher sense of duty and freedom. True duty consists in the control of the sense, in selflessness, in loving service, in the purification and the right concentration of the mind, and in giving all our faculties a higher turn, making them fit instruments for the divine. There are also people who cultivate an indifferent mood. They are indifferent to everything except perhaps their own personal affairs. Very often, this indifference is the result of selfishness and laziness.
It is a tamasic state and should not be confused with the true detachment of a spiritual man. Such lethargic and dull people are more dead than alive. True detachment, a true witness attitude, makes you alert and imparts intensity to everything you set your mind on, work or meditation. तो यहाँ पर बताया जाता है कि कर्तव्य का अर्थ इस अहंकार, शरीर, चेतना, मन आदि की दुनिया से आसक्ति या चिपके रहना नहीं है। और मैं आसक्ति के माध्यम से ये कुछ इच्छाओं की संतुष्टि के लिए किए गए किसी भी कार्य को कर्तव्य कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। परिपक्व होने के लिए कर्तव्य का स्थान देना आवश्यक है। तो यहाँ पर सच्चा कर्तव्य इंद्रियों को वश में करना, निस्वार्थता में रहना, प्रेम पूर्वक सेवा करना, मन को शुद्ध करना और सही एकाग्रता में रहना तथा अपनी सभी शक्तियों को उच्चतर दिशा में ले जाकर उन्हें भगवान के लिए उपयुक्त साधन बनाना है। हम जितने ज़्यादा अधिक पवित्र होते जाएंगे, हमें भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा के रूप में अपना कार्य उतना ही बेहतर ढंग से हम कर पाएंगे। लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि हमें आसक्ति भी है और आसक्ति को कभी भी कर्तव्य का नाम नहीं देना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो अधिकांश लोग जो है अपने तथाकथित कर्तव्य का पालन स्थूल या सूक्ष्म रूप से इंद्रिय सुखों से चिपके रहने के कारण, व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति आसक्ति के कारण करते हैं। लेकिन यह कोई कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ हमें बहुत स्पष्ट रूप से भेद करना सीखना चाहिए कि वास्तव में किसी न किसी रूप से गहरी जड़ें जमाए हुए अहंकार क्या है और सही अर्थों में कर्तव्य क्या है। जब तक हम अपने छोटे से आत्म और उसकी शुद्ध इच्छाओं के प्रति अपनी अत्यधिक आसक्ति, सभी प्रकार के इंद्रिय सुखों, संपत्तियों के प्रति अपनी अत्यधिक लालसा को त्यागने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक हम कभी भी उच्चतर दृष्टिकोण नहीं अपना सकते और इसीलिए हम उस परिभाषा का अर्थ नहीं समझ सकते। कर्तव्य वह दंड है जो हमें अपनी आसक्ति के लिए चुकाना पड़ता है। ऐसे भी लोग हैं जो उदासीन मनोदशा विकसित करते हैं। वे शायद अपने निजी मामलों को छोड़कर हर चीज के प्रति उदासीन होते हैं। अक्सर यह उदासीनता स्वार्थ या आलस्य का परिणाम होती है। यह एक तामसिक अवस्था है और इसे आध्यात्मिक व्यक्ति की सच्ची वैराग्यता से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे सुस्त लोग जीवित रहने की बजाय मृत होते हैं। सच्चा वैराग्य, एक सच्चा साक्षी भाव आपको सतर्क बनाता है और आप जिस किसी चीज पर अपना मन लगाते हैं या ध्यान लगाते हैं, उसमें तीव्रता लाता है। इसलिए इसे सभी के लिए एक सामान्य नियम के रूप में लिया जाना चाहिए। अपने विभिन्न कर्तव्यों का निर्वहन, अपनी शारीरिक अवस्थाओं को पूरा करना या दूसरों की सहायता करना या भगवान की सेवा करना हमें आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करने में सक्षम बनाना चाहिए। यदि हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं करते हैं तो काम के प्रति हमारे दृष्टिकोण या हमारे कर्तव्य की भावना में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्यों में टकराव। वेरी ऑफन आवर सेंस ऑफ ड्यूटी इज फाउंड टू बी कॉन्फ्लिक्ट विद आवर सेंस ऑफ प्लीजेंट, but we should learn to make our sense of duty coincides with our sense of pleasant. Make our thought coincide with what we should like to do and thus avoid unnecessary friction and worry, which mean a huge waste of energy. Sometimes we complain Sometimes we complain that we are not able to get time for spiritual practice because of our preoccupation with the duties of life. Usually, such complaints are baseless. If there is any real, sincere, and deep rooted hankering after the higher life, you will always find the necessary time for your spiritual practice and studies. And if you do not do so, in spite of feeling a real yearning, you will end by being completely upset.
When the soul has become to have a little awakening, it must be given food under all circumstances. Otherwise, there comes a serious cleavage in the personality, a great disturbance and restlessness, a tremendous dissatisfaction and loss of balance. In such case, you never feel at, at ease so long as you go on starving your soul. Someday we may have to go through our practice a little hurriedly, some other day a greater leisure with greater attention. But if we do not go through them at all, this thought will be pricking us constantly for the rest of the day, creating the whirlpool in our mind, whether hurriedly or leisurely, spiritual practice has to be done day by day with great steadiness, singleness, of purpose, of regularity. Saying that there is absolute no time for one's spiritual practice or reading is not the truth. If I find time to sleep for 6 hours, I can sleep, let us say, just 10 minutes less and take some 5 minutes from any meal and some 5 minutes from something else and so on. Thus I come to have at least half an hour for my spiritual practice and reading, and this is what is to be done under all circumstances. Even if the mind is disturbed, if I am not able to do it with great attention, even if I go through my practice somewhat mechanically, even if my whole brain revolves at the mere idea of study and deep thinking, and this is too is duty, and for by serving myself first with a view to serving others, I can serve them with far greater efficiency and in a better spirit. If we are able to work for others in the right spirit without any personal gain, we will be able to do our more meditation in a better way, and that again will help us in working for others in a better spirit of concentration, spirit of consecration, and self surrender to the divine. There are some people who go on with their japa even while they are engaged in some work. The mind has got wonderful capacities if we only know how to control, purify, and develop it along right lines. One may very well do one's work in a perfectly designed way, surrendering oneself wholly and unconditionally to the divine. Then there comes a time when all work becomes worship, and work again becomes worship when we are in that prayerful mood of self surrender. It is possible to combine both activity and self surrender and do what we have got to do in perfect self forgetfulness. कर्तव्यों का टकराव। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें कोई खास कर्तव्य निभाना है, लेकिन हम पाते हैं कि वह हमारी सोच से परे है। वह हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? किसी कर्तव्य का सहारा लें और उसे लक्ष्य की ओर ले जाना कदम बना लें। कर्तव्य के लिए कोई निश्चित मानक जैसी कोई चीज नहीं होती। बहुत बार ऐसा पाया जाता है कि हमारा कर्तव्य बोध हमारी सुखद अनुभूति के साथ संघर्ष करता है, लेकिन हमें अपने कर्तव्य बोध को सुखद अनुभूति के साथ मिलाना सीखना चाहिए। अपने विचारों को उस बात के साथ मिलाना चाहिए जो हम करना चाहते हैं, और इस प्रकार अनावश्यक टकराव और चिंता से बचना चाहिए, जिसका अर्थ है ऊर्जा की भारी बर्बादी। कभी कभी हम शिकायत करते हैं कि जीवन के कर्तव्यों में व्यस्त होने के कारण हमें साधना के लिए समय ही नहीं मिल पाता। आमतौर पर ऐसी शिकायतें बिल्कुल निराधार होती हैं। यदि उच्च जीवन के लिए कोई सच्ची ईमानदार गहरी लालसा है, तो आप हमेशा अपनी साधना और अध्ययन के लिए आवश्यक समय निकाल लेंगे। और यदि आप वास्तविक तड़प महसूस करने के बावजूद ऐसा नहीं करते हैं, तो आप पूरी तरह से परेशान हो जाएंगे। जब आत्मा में थोड़ी जागृति आ जाती है, तो उसे हर हाल में भोजन दिया जाना चाहिए, अन्यथा व्यक्तित्व में गंभीर दरार आ जाती है।
एक बड़ी अशांति और बेचैनी, एक जबरदस्त असंतोष और संतुलन का नुकसान होता है। ऐसे मामले में जब तक आप अपनी आत्मा को भूखा रखते हैं, तब तक आप कभी भी चैन महसूस नहीं करते। किसी दिन हमें अपनी साधनाएं थोड़ी जल्दी जल्दी करनी पड़ सकती हैं और किसी दिन बहुत आराम से और अधिक ध्यान से। लेकिन अगर हम उन्हें पूरा नहीं करते हैं तो यह विचार हमें पूरे दिन लगातार चुभता रहता है और हमारे मन में एक भंवर पैदा करता रहेगा, चाहे जल्दबाजी हो या आराम। आध्यात्मिक रहेगा आध्यात्मिक साधना को दिन प्रतिदिन बड़ी स्थिरता, एकनिष्ठ उद्देश्य और नियमितता के साथ करना चाहिए। यह कहना कि साधना और पढ़ने के लिए बिल्कुल समय नहीं है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर मुझे सोने के लिए समय मिल जाए तो कुछ 6 घंटे मैं सो सकता हूँ, मान लीजिए बस 10 मिनट कम, और अपने भोजन से कुछ 5 मिनट, और किसी और चीज़ से कुछ 5 मिनट, और इसी तरह मुझे अपने आध्यात्मिक अभ्यास और पढ़ने के लिए कम से कम आधा घंटा मिल जाता है। और ये वही है जो सभी परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। भले ही मन अशांत हो, भले ही मैं इसे बहुत ध्यान से करने में सक्षम ना हूँ, यहाँ तक कि पूरा दिमाग अध्ययन और गहन चिंतन के विचार मात्र से विद्रोह कर देता है। और यह भी कर्तव्य है, दूसरों की सेवा करने के उद्देश्य से पहले खुद की सेवा करके मैं उनकी अधिक कुशलता से और बेहतर भावना से सेवा कर सकता हूँ। अगर हम बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के सही भावना से दूसरों के लिए काम करने में सक्षम हैं, तो हम अपना ध्यान बेहतर तरीके से कर पाएंगे। या फिर यह फिर से हमें दूसरों के लिए समर्पण और आत्मसमर्पण की बेहतर भावना से काम करने में मदद करेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम में लगे रहते हैं और जप भी करते रहते हैं। अगर हम मन को नियंत्रित करना, शुद्ध करना, सही दिशा में विकसित करना जानते हैं, तो मन में अद्भुत क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। कोई भी व्यक्ति अपने काम को पूरी तरह से समर्पित होकर बिना किसी शर्त के ईश्वर को समर्पित करके कर सकता है। फिर एक समय आता है जब सारा काम पूजा बन जाता है, और जब हम आत्मसमर्पण के उस प्रार्थनापूर्ण मनोदशा में होते हैं तो काम फिर से पूजा बन जाता है। गतिविधि और आत्मसमर्पण दोनों का मिलना संभव है, और हमें जो करना है उसे पूर्ण आत्मविस्मृति में करना है। तो इसलिए कार्य का जो लक्ष्य है वो ऊंचा होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों के जीवन में आप पाएंगे कि यह सब लक्ष्यहीन गतिविधि है जिसका कोई आदर्श नहीं है, कोई उच्च लक्ष्य नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई स्पष्ट अवधारणा ही नहीं है। यह कुछ और नहीं बल्कि अस्पष्ट विचारों, इच्छाओं के समुद्र में बहता रहता है। और ऐसे लोग जिसे आमतौर पर कर्तव्य कहते हैं, वह वास्तव में आसक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। यह सब आसक्ति और इंद्रियों की भोग लालसा है। साधारणतः लोग अपनी इंद्रियों और व्यक्तिगत इच्छाओं, स्थूल और सूक्ष्म के गुलाम बनकर काम करते हैं, लेकिन महान लोग अपनी असीम स्वतंत्रता से काम करते हैं, न तो आसक्ति की भावना से और न ही कर्तव्य की भावना से, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। वे अपने सभी कार्य सभी में विद्यमान ईश्वर की प्रेमपूर्ण सेवा के रूप में करते हैं और स्वयं को भगवान के हाथों में यंत्र के रूप में पूरी तरह से अनुभव करते हैं। Next topic is helping others spiritually. After progressing in spiritual life, you should try to render spiritual help to others. But do this only to the extent you have already got the power. Otherwise, pray to the Lord for those whom you want to help. If you pray intensely and sincerely, the Lord will do what is the best for them. You can help others to the extent they are in tune with the Lord. Shiva drank the terrible poison so that the whole world might be saved. He had the power to assimilate the poison without being poisoned. You must first attain the tremendous purity of Shiva if you want to remove the poison of the world. Better begin with small doses. As you grow purer and spiritually stronger, you will be able to absorb bigger doses without much danger to yourself. The more you feel for others and wish to help them,
The more you should become unattached and move closer to your East Devta, the Lord, pray for yourself and for others. Learn to be a real child of the Lord, no matter what happen, and pray to Him to give you unwavering faith in Him and in yourself. Make the Lord your all in all, then nothing will affect you. You will be safe at all times. Wherever you are, if you maintain contact with the divine consciousness in you, be pure, one pointed, determined, and you are sure to attain the goal. दूसरों को आध्यात्मिक रूप से मदद करना। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के बाद आपको दूसरों की आध्यात्मिक मदद करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ऐसा केवल उसी सीमा तक करें जहां तक आप में पहले से ही शक्ति है। अन्यथा जिनकी आप मदद करना चाहते हैं उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। यदि आप तीव्रता और ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं तो भगवान वही करेंगे जो उनके लिए सबसे अच्छा होगा। आप दूसरों की मदद उस हद तक कर सकते हैं जिस हद तक भगवान अपने इष्ट देवता के साथ तालमेल बिठाते हैं। शिव ने भयंकर विष पिया ताकि पूरी दुनिया को बचाया जा सके। उनके पास विष को बिना विष के आत्मसात करने की शक्ति थी। यदि आप विष के दुनिया के विष को दूर करना चाहते हैं तो आपको पहले शिव की अपार पवित्रता प्राप्त करनी होगी। बेहतर होगा कि आप छोटी खुराक से शुरू करें। जैसे जैसे आप शुद्ध होते जाएंगे और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते जाएंगे, आप खुद को ज़्यादा खतरे में डाले बिना बड़ी खुराक को अवशोषित करने में सक्षम हो जाएंगे। जितना अधिक आप दूसरों के लिए महसूस करेंगे और उनकी मदद करना चाहेंगे, उतना ही आपको अनासक्त होना चाहिए और अपने इष्ट देवता भगवान के करीब जाना चाहिए। अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करें। अगर आप खुद की मदद नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरों की मदद भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप जिस नाव में यात्रा कर रहे हैं वह पलट जाए तो आप अपने किसी साथी को बचा सकते हैं, बशर्ते आप खुद अच्छे तैराक हों। लेकिन आप सभी को तो एक साथ नहीं बचा पाएंगे और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आप समेत सभी डूब जाएंगे। इसलिए पहले अपनी ताकत का अंदाजा लगाइए, निष्पक्षता से विवेक का इस्तेमाल करके फिर मौका मिलने पर दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान का सच्चा बच्चा बनना सीखें। उनसे प्रार्थना करें कि आपको उन पर और खुद पर अटूट विश्वास दिलाएं। भगवान को अपना सर्वस्व बना लें, फिर कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। आप जहाँ भी हों हर समय सुरक्षित रहेंगे अगर आप अपने अंदर की दिव्य चेतना के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। शुद्ध, एकाग्र और दृढ़ निश्चयी बने और आप निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था 5th चैप्टर, सांसारिक कर्तव्य और आध्यात्मिक जीवन। कल हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर 6th चैप्टर में कंडीशंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तब तक के लिए नमस्कार।